For most efficient result, watch this video in 2x speed. Hello, good evening. How are you? Hi, good evening, Kalyani. I'm good. What about you? Yeah, even I'm doing great. So, Okay, nice. yeah, so it's very interesting. So hello everyone. So he is Abhishek Baumik and he's currently working in Bank of India. And we used to be classmates. Like we have studied, I guess, from grade 1 to grade 12 in the same school. And like after that, I was pursuing some like MBA and he was pursuing his government exams and all. And after so many years, again, I have got a chance to have a conversation with him, and I'm feeling very good to again have a conversation where we are sitting at different points in life. Maybe he's working as a banker and I'm working in a corporate, but it's very interesting, from childhood being friends and playing together, and today we are here. So how are you feeling? Yeah. Well, I'm feeling good. It's nice to meet you. And it's been a long time since we had a conversation. Yeah, yeah, So, yeah, feeling great. Yeah. yeah. So Abhishek, tell me a bit about yourself. Like, what was your background and why you decided like you want to you want to crack this bank wala exam, and it is one of the exams जो बहुत सारे candidates देते हैं India में. So it is regarded as one of the toughest exam, IBPS and all. So tell me a bit about your background and what motivated you कि आप बैंक में ही काम करो. Okay. Well, first of all, we did our schooling together, so Yeah, one must be knowing. yeah. After my 12th, I pursued engineering in computer science. And while doing so, Hmm. I was a bit confused that whether to go for MTech or whether I should switch for government exams. Hmm. Hmm. Then the situation was like we were hit by COVID pandemic, Yeah. and I saw the scenario of jobs. Yeah, I cleared campus interview Hmm. during my final year, but then also I was thinking that whether to go for public sector or I should go into corporate. Hmm. But when I asked my seniors who were working in corporates, the situation was not so good because of the pandemic. So Hmm. I decided that let's give some time to competitive exams and try to clear them. Hmm. So I started preparing for banking because my father is from finance background. So I was very fascinated with finance and economy. Hmm. So since pursuing CA would have been a very difficult task and Yeah. a very, yeah, and very lengthy course it is. Yeah. So I decided to opt for banking Hmm. and I started preparing for that. Okay. Okay. So like in banking preparation, as we know, the exam is very tough and very daunting for all of the people who are beginners. And like there are a lot of people who have just started preparing, and there are a lot of people who have already attempted their exams and they were not able to clear the exam. So I would like to know your strategies. Like, what was your strategy during your preparation, and क्या-क्या section होते हैं banking के exams में? Okay. So first of all, I would like to tell all the aspirants that I even failed in my first attempt and I cleared it in my second attempt. So please don't be disheartened because your efforts will be rewarded at some point of time. So keep hard working. And regarding the preparations, first of all, I will tell you why I failed in my first attempt. Hmm. The thing was that since banking exams, there are massive competition, lakhs of aspirants fight for that one seat. So the IBPS, or you can say SBI also, the conducting body has scheduled the exam in three stages. First is preliminary, second is mains examination, and third is interview, Okay. which also involves group discussion also at some Okay. exams. Okay. So the strategy is prelims is all about your speed and accuracy. Okay. You need to use short tricks, Hmm. smart work, Hmm. and try to score as many marks you can in that stipulated amount of time that you're given. It's Okay. 1 hour.
and it's although there are three sections: Hmm. English, reasoning, and quantitative aptitude. Okay. And the three sections, you are allotted 20 minutes each. Okay. And English consists of 30 questions. Hmm. Reasoning and quantitative consist of 35 questions each. Okay. So out of 100 marks, you need to score as much as you can so Okay. that you can appear for the examination. Hmm. So clearing prelims is not that hard if you have your concepts clear and if you give regular mocks. Hmm. But where I lagged was that I cleared the prelims, and when I appeared for mains, I realized that mains is all about your concepts. The mains will test your patience. It will test because you have to sit for 3.5 hours for that particular exam Hmm. for mains, Hmm. and you have to answer questions from English, from data interpretation, from reasoning. Hmm. Okay, and you also have descriptive paper. Hmm. So it's a bit tiring. I mean, if you have your concepts clear, you need to keep patience because at some point of time you will be lethargic because 3.5 hours continuously, Hmm. your brain, yeah, your brain will stop working if you do not practice enough. Okay. So I would like to tell all of you that if you are appearing for mains exam, first of all, try to develop seating habit. I mean, it's not necessary that you need to score in mocks at Okay. earlier stages. I mean, Okay. it's not possible because you will have to get habituated with the level of questions that will be asked. And Hmm. nowadays, since the competition is so fierce, Hmm. the level of questions are very high. Hmm. So don't be bogged down with the difficulty level Hmm. because if you are preparing well and that particular question is difficult for you, so it will be difficult for every other aspirant. Hmm. So it's not a big deal. Hmm. What is important is that you need to keep your composure while attempting the question. If you will practice well, you will know that what are your strong areas, which questions are there, which you can attempt, and you can attempt it surely and you will score marks. First, attempt those questions, and then you move on to the questions which you find tricky. Hmm. So I lagged in my first attempt that I didn't knew which questions to attempt first because it was new for me and I was not habituated of sitting for 3.5 hours. I Hmm. used to practice, but 1.5 hours, prelims is only about 1 hour. So I thought that yeah, the mains will be like that. I'll sit and give my exams in one go. Hmm. But when I faced the mains exam, I realized that it's not that simple because general awareness is there. The first section which comes in front of you is general awareness. So you are given 35 to 40 minutes for 40 questions. So general awareness is like if you know the question, it's a direct answer. If you don't know it, you will skip it because there is negative marking. So you can attempt the paper in 20 to 25 minutes. And you can try hit and try in next 5 to 10 minutes. Still you have 10 to 15 minutes in hand. So you just sit idle. Okay. And in the back of your mind, there is always, you are thinking that what will be the next section. If you are doing good in general awareness, then you get the confidence, yeah, I can crack it. But you if you have got questions from general awareness from the topics that which you have not covered, so Hmm. you will be demoralized that I am not even able to score in general awareness. How what will I do in the next section? So it's Hmm. all about mind game. So you need to keep your composure, which I lagged because I didn't give much mocks of mains. I primarily focused on prelims. So I then in my second attempt decided that okay, I am prepared for prelims. I just need to brush my concept for mains, and I have to increase my sitting habit. So I used to give mock alternative every alternative day. I used to give mocks, Hmm. and I used to sit for 3.5 hours, Hmm. and I didn't focus on how much questions I'm scoring. I just
try to build myself that, yeah, I have to sit for 3.5 hours and I have to be calm, whether I'm able to solve the questions or whether I'm skipping it. It Okay. didn't matter that time. Yeah. So I practice in this way. I mean, people can adjust to different type of practicing techniques according to their, Mm-hmm. comfort zone. Mm-hmm. But mains is all about testing your comfort zone. So you have to get out of it at some point of time. Okay. And then, yeah. And one thing is that in mains examination, there are sectional cutoffs. Mm-hmm. And many people have good command and descriptive, so they can write a very long essay or draft a very long letter regarding any topic they are given. But the catch is, if you are writing well, you have that writing capability, it will be of no use if you are not able to clear sectional cutoff of any one subject, whether Okay. it's English, it's quantitative, reasoning, or general awareness. Okay. So, if you are not able to clear the cutoff of any particular subject, then Mm. simply your paper will be discarded and you will be eliminated. Okay. So, one important message is that don't skip any topic. Yeah, you might be strong in any particular subject or any particular topic. So practice that particular subject, but give more time to that subjects which are your weakness, which you don't have much command in, Mm-hmm. because you never know. It might happen in exam that you are very good in, say, quantitative aptitude and reasoning. Mm-hmm. Okay, and it might happen that in mains exam, the toughest section can be quantitative aptitude and reasoning, and the easiest one can be English and general awareness. Since Okay. reasoning and quantitative was your strong point, you focused on that. Mm-hmm. You didn't bother about general awareness and English. Mm-hmm. So it will be a massive setback for you while preparing. So Mm-hmm. you need to keep that in mind. And after mains exam, once you clear mains exam, there is interview Mm-hmm. and group discussion. So group discussion is all about, they will test your personality, how prompt you are, or how well aware you are regarding your surroundings, your current affairs. Mm-hmm. So the topics will be from a particular domain, any particular domain. Mm-hmm. And interview is pressure interview. They will test you, like, because see, banking industry is all about building relationships with the customer, Yeah. and you might face customers who are very rigid Mm-hmm. and who are very troubled. I mean, yeah, we get frustrated if we are in some problem. So just imagine that you are sitting at a place where lakhs of customer will come at the bank, and they all have different problems, and you have to solve them. And if you are not able to solve them, then they will they will keep bothering you, and they will keep coming to you, sir, please solve my problem. So it's all about it. It's too much pressure. Some people, especially the people who are introvert, who do not like to express themselves, who do not like to talk much to, unknown people, Mm-hmm. they find it difficult. I have seen it when I joined Bank of India. Uh, I got my rural posting, so I Okay. was posted in the rural area. So people in rural area, you can understand that they are not well equipped with financial knowledge, and they are not much aware of the financial happenings which are going on. So whenever they used to visit bank regarding some government schemes which are being implemented, so we had to make them understand from right from scratch, Mm-hmm. like, yeah, like, you spoon feed a child, so it's like that. So you have to keep patient. So that's what they test at interview. They will throw uncomfortable questions at you. Mm-hmm. Okay, you have to be prepared for it. And well, interview is uh, interview is for later stages. First is that you need to clear the two big stages to be eligible for that, because for interview, one third candidate gets selected for interview. Okay. So, well, when I gave my exam Mm-hmm. that year, I remember the number of applicants crossed 16 lakhs. Okay, and the number of seats were 6,000 Mm-hmm. all over India. Mm-hmm. So
you can do the math, you can understand that the level of competition, because there are lakhs of youth who are getting eligible every year. So Hmm. the competition increase day by day. It's not Hmm. gonna diminish. Hmm. So that's what I want to say to the aspirants, that keep hustling. You know, your hard work will be paid and you will be rewarded. And uh, try to get motivated from your failures, because if you will motivate yourself from your failure, you will get success at some point of time, definitely. Well, Hmm. I am one of the examples, because Hmm. once again, I didn't clear it in my first attempt, I cleared it in my second attempt. Hmm. So what helped me is that I knew that yes, I lacked in this particular area, or I need to work in this particular subject. Hmm. So while preparing, Hmm. I used to practice my strong area, but I used to give more time to the areas which were my weaker section. Okay. So that helped. Yeah. And also, whenever I used to study, I used to switch off my mobile phone so that I do not get distracted, because Hmm. it's very big distraction nowadays, social Hmm. media and Instagram. I'm not telling you to abolish or boycott your social life. Hmm. I'm just telling you that the time that you are giving to your preparation, just boycott yourself from social media for that particular amount of time. Hmm. Yeah. So like I have one question in my mind. So like आप जो prelims देते हैं, mains देते हैं, interview देते हैं, तो like ये total जो stage हम अगर if somebody is clearing, तो like it will take how much time? Like 6 months का span होता है, 1 year, like कितना होता है? Like for example, you एग्जाम। cleared the prelims, हाँ। prelims से हाँ। लेके इंटरव्यू तक जो ड्यूरेशन होता है वो कितने का होता है? मतलब 1 year होता है, 6 months होता है, नहीं नहीं अप्रोक्स? नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता। 3 to 4 months, आजकल एग्जाम्स बहुत फास्ट ट्रैक हो गए हैं। अच्छा। ये जो नोटिफिकेशन है बैंकिंग एग्जाम्स के, हर साल आते हैं, एंड अगस्त सितंबर से आने चालू हो जाते हैं। अच्छा। अभी तो ऐसा है कि बहुत अच्छा मौका है जिन लोगों का कमांड नहीं है इंग्लिश में, या जो हिंदी लेके पढ़े हैं, या उनके लिए रूरल बैंक के एग्जाम्स होते हैं। आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है उसको, आरआरबी पीओ, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट। हम्म। तो उसमें ऐसा है कि इंग्लिश जो है नहीं पूछा जाता है, ओके। बेसिकली एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ओ। प्रीलिम्स में, हाँ, प्रीलिम्स में जो इंग्लिश है, इट्स जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। अच्छा। मेन जो कट ऑफ है, हाँ, आजकल तो एलिमिनेट भी कर दिया इंग्लिश को। अभी तो मेन है कि सिर्फ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो बस उसमें आपको स्कोर करना है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, कि प्रीलिम्स में ऐसा है ना कि आपका जो एक्यूरेसी है वो रहना चाहिए, क्योंकि क्या हम्म। होता है ना कि कभी कभी पेपर जैसे इजी आ जाता है। अब चूंकि आईबीपीएस के एग्जाम्स बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं, तो शिफ्ट्स में होते हैं। हम्म। एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, एंड ये जो एग्जाम्स है ये 4-5 दिन में डिवाइडेड रहते हैं। एवरी वीकेंड कोई ना कोई एग्जाम, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर पे एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। हम्म। तो चूंकि 4 शिफ्ट में हो रहे हैं, तो 17 to 18 शिफ्ट में अगर एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, तो बट नेचुरल है कि हर एक शिफ्ट में पेपर का लेवल थोड़ा बहुत डिफरेंट तो रहेगा। तो हम्म। उस लेवल को मैच करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। हम्म। तो नॉर्मलाइजेशन में उन एस्पिरेंट्स को ज्यादा फायदा होता है जो ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं। ओके। आई I मीन जैसे मेरे शिफ्ट में पेपर बहुत इजी आया, तो मैंने आउट ऑफ 195 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। हम्म। एंड तुम्हारे शिफ्ट में पेपर टफ आया, तो ओके। आउट ऑफ 100 तुमने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हम्म। बट मैंने आउट ऑफ 95 80 क्वेश्चन सही बनाए। हम्म। तुमने आउट ऑफ 65 क्वेश्चन सही बनाए। हम्म। तो तुमको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्यों? ओके। क्योंकि तुम्हारी एक्यूरेसी ज्यादा है। ओके। सो हाँ, सो एस्पायरेंट्स कभी कभार ना डिमोरलाइज हो जाते हैं पेपर का लेवल देख के। एक हम्म। सेक्शन में देखते हैं यार ये तो टफ आ गया, अब तो पेपर नहीं निकलेगा क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैं हम्म। यही कहना चाहूंगा कि उससे आप डिमोरलाइज मत होइए, क्योंकि हम्म। देखिए क्या है कि अगर पेपर टफ आया है तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो सारे लोगों के लिए टफ है। तो हम्म। आप बस ये फोकस करिए कि आप कौन से क्वेश्चन को एकदम एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में ऐसा है कि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं।
हम्म ठीक है, बट फिर भी चूंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तो आप ऐसे बेसलेस जो है अटेम्प्ट नहीं कर सकते। हालांकि अभी कंपटीशन बढ़ाने के लिए नेगेटिव मार्किंग रख भी दिया शायद हाल हम्म के एग्जाम का, मेरे को आइडिया नहीं है। एक बार हम्म उसको क्रॉस चेक कर लीजिए क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। हम्म तो को क्लियर करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप जो भी टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं हम्म उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एस्पिरेंट्स के मन में आ सकता है कि क्या हम शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए ट्यूशन ज्वाइन करें या हम्म। सेल्फ स्टडी। या। हाँ मैंने जो है ना मैंने ज्वाइन किया था, महिंद्रा ज्वाइन किया था मैंने। हम्म बट मैंने सिर्फ एक मंथ के लिए ज्वाइन किया था जस्ट टू नो कि एग्जाम में क्या आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो था कैसा था ना कि मैं उतना गूगल नहीं किया कि क्या सिलेबस। आजकल तो गूगल करने पे हर हर एक जो साइट है स्टूडेंट या। के रिलेटेड स्टडी साइट, वो जो है सिलेबस एंड कोर्सेस एंड कितने मार्क्स के क्या वेटेज है वो सारे डिटेल उसमें मिल जाते हैं गूगल में। बट यस। मैंने तब नहीं किया था। मैंने तब ज्वाइन किया था जानने के लिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो वहां पे मैं गया, एक महीने मैंने देखा कि हाँ ठीक है कैसे प्रिपरेशन करना है, मैं वहां से जान के आ गया। घर आया मैंने, तो वहां पे मैंने एक क्वांटिटेटिव की बुक खरीदी एंड फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैं प्रेफर किया था पॉइंट्स अच्छा। के लिए। अच्छा। हाँ हाँ अच्छी बुक है, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दिए रहते हैं। तो मैं वहां से जो है प्रिपरेशन जब अपना चालू किया तो मैं राइट फ्रॉम स्क्रैच किया। हाँ ऑल्दो मुझे चूंकि मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो मेरे को टॉपिक्स पता थे राइट। क्वांटिटेटिव के। राइट। बट हाँ बट मैंने जो है राइट फ्रॉम स्क्रैच चालू किया, मतलब कि हर एक पहले क्वेश्चन जो मेरे को दिखा मैं उसको सॉल्व करते गया। ये हम्म हम इसीलिए करते हैं, ये मैंने अपना फर्स्ट टाइम जब प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने नहीं किया था, बिकॉज तब मेरे को ऐसा था कि इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। बट मैंने जब सेकंड अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरे को फेलियर मिला, मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो तैयारी कर रहा था, तो तब मैंने ये रियलाइज किया कि अगर हमको सिटिंग हैबिट अपनी बढ़ानी है ना, हम्म तो हमको राइट फ्रॉम स्क्रैच चालू करना पड़ेगा। एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन को छोटा नहीं समझ सकते। ओके। ऑल्दो वो एक लाइन का क्वेश्चन हो सकता है, बट हो सकता है कि वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपका टाइम खा ले। हम्म। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करिए। एंड आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है राइट फ्रॉम स्क्रैच चालू करिए। ठीक है, हम्म आपने क्या पढ़ाई की है, आप क्या जानते हैं, कितनी नॉलेज है आपको, जस्ट इरेज इट। हम्म जस्ट थिंक कि आई एम अ ब्लैंक बुक, आई आई नीड टू फिल इट विथ नॉलेज। ठीक है, हम जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे चालू करिए। राइट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हो आप हम्म चालू करिए। एंड उससे क्या होगा ना कि आपका जो है प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के दौरान ही वो सिटिंग हैबिट बन जाएगी। हम्म तो आपको मेन वो टायरसम जर्नी फेस नहीं करनी पड़ेगी। हम्म तो आप एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए, आप सॉल्व करते जाइए एंड एक नोट्स रखिए। हर एक, जैसे आप क्वांटिटेटिव के लिए अलग एक कॉपी बना लीजिए, मोटी कॉपी हम्म रीजनिंग के लिए। तो हम्म क्या है ना कि उसमें जो भी आप सीख रहे हैं हम्म टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपको नई चीजें पता चल रही हैं जो आपको पहले नहीं पता थी, हम्म उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम्म क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो यू यू वोंट बी हैविंग अ टाइम ऑफ रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस। हम्म आप अपने वो जो शॉर्ट नोट्स फास्ट ट्रैक नोट्स जो आप बना रहे हैं वही काम आएगा, क्योंकि आप जिस बस उसी को जॉट डाउन करेंगे ना, क्योंकि आप उसी को रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो सब चीजें नहीं है। बाकी जो चीजें हैं वो तो आप बैक ऑफ द माइंड में वो स्टोर हो चुकी हैं, उसको राइट। आपने पॉलिश कर ली। जो नई चीजें हैं, जो आपने नई चीजें जो सीखी हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। तो आप उसी चीज पे फोकस करें। तो नोट्स बहुत जरूरी है, वो टाइम बचाता है। बिकॉज क्या होता है ना कि जब एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मान लीजिए कि आप सितंबर से एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, आपने आरआरबी भी भर दिया, आपने आईबीपीएस पीओ क्लर्क भी भर दिया, एसबीआई का एग्जाम अलग होता है, एसबीआई कंडक्ट कराता है, तो यस। एसबीआई पीओ एसबीआई आपने भर दिया। हम्म। आजकल तो एलआईसी भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। यस। एलआईसी हो गया, जितने इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है, वो भी अपना एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। यस। तो आपने मान लीजिए कि आपने सब भर दिया क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका सिलेबस सेम है। या। ओके, ऑलमोस्ट सब सेम। सेम पर नहीं है, हाँ सेम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एंड कंपटीशन भी
सेम रहता है। Yes, तो yes. आपने सब एग्जाम भर दिए, क्योंकि यार रहता है ना कि हम इंडियन मेंटेलिटी है कि बहुत सारी चीजों पे हमको अपने रूट सेट करके रखने की, कोई ना कोई एक तो फंस जाएगी, कोई एक मछली तो फंसेगी हमारे जाल में। तो Yeah. वो ऐसा है कि हम बचपन से हम हमारी पढ़ाई वैसी हुई है कि हम लोग को जब भी बचपन में पेरेंट्स भी पढ़ाए हैं तो बोले कि सब पढ़ के जाओ, Yeah, yeah. कोई ना कोई चीज सारे Yeah. क्वेश्चंस करके जाओ। Yeah. तो एग्जाम्स में करते हैं कि नहीं, सारे एग्जाम्स को देना है हमको, क्योंकि कोर्स तो सेम है, कोई ना Hmm. कोई एक तो क्लियर हो। उस चक्कर में क्या होता है ना कि सारे प्रीलिम्स हमने क्लियर कर लिए क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्रिपरेशन करने के बाद ऐसा होता है ना कि मेन सबके सेम पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा है कि मान लीजिए कि इस संडे पे आपका एक मेंस है, हाँ 5 दिन बाद दूसरे उसका मेंस है, आईबीपीएस का मेंस पड़ गया, तो पता चला 2 दिन बाद एसबीआई का भी मेंस है। तो ये जो ड्यूरेशन है आपका, हाँ. ट्रांजिशन का time बहुत कम है आपके पास मेंस के दौरान। Okay. तो उस तो उस दौरान क्या है ना कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को वापस से पढ़ने बैठे, जैसा कि हम स्कूल में करते आए हैं, क्योंकि Right. यही डिफरेंस है कि Hmm. अपने सिलेबस का पढ़ाई करने में और कॉम्पिटेटिव का पढ़ाई करने में बहुत मेजर ट्रांजिशन करना पड़ता है। जो कैंडिडेट जितने जल्दी कर लेता है Hmm. उसके लिए उतना अच्छा है। क्या है, ग्रेजुएशन में भी जब हम करके आते हैं ना, आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करिए, आप कॉमर्स से करिए, आप इंजीनियरिंग करिए, आप मेडिकल करिए, कोई भी स्ट्रीम से करिए, उसमें एक सिलेबस प्री डिफाइंड है। Yes. आपको उतना पढ़ाई करना है, उतना पढ़ के जाना है। आपका माइंड क्या है ना कि आपका माइंड सेट हो जाता है कि यार मेरे को तो ये टॉपिक्स करके जाने हैं, चाहे Hmm. कितना भी बड़ा सिलेबस हो, बट एक डोमेन सेट हो गया कि मेरे को इस डोमेन के अंदर ही तैयारी करनी है। Hmm. कॉम्पिटिटिव ऐसा है ना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, नाम ही है कॉम्पिटिटिव, तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो Hmm. आपके पास कोई वो नहीं है कि आप नहीं, मैं इसी से पढ़ के जाऊंगा तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। Hmm. आपके पास एक ही चीज है, अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, जितना हो सके उतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए अलग अलग सोर्सेस से। ऑनलाइन में आजकल तो ऑलिव बोर्ड हो गया, अड्डा 247 है, स्टडी Hmm. आईक्यू है, Hmm. बहुत सारे टेक्स्ट बुक है, Hmm. स्मार्ट पीड़ा है, एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं प्रिपरेशन के लिए। Hmm. ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कोर्स कंप्लीट हो गया है, आपने हाँ. रिवीजन कर लिया है, अब Hmm. बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। Hmm. तो बहुत कैंडिडेट्स को मैंने देखा है प्रिपरेशन के दौरान, वो क्या करते हैं ना कि पहले क्वेश्चन पे चले जाते हैं अपना कंसेप्ट क्लियर किए बिना। तो क्या Hmm. है ना कि वो क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, हाँ लेकिन राइट. ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, मेंस एग्जाम में 2-3 कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा इंटरप्रिटेशन, जो हम्म. क्वांटिटेटिव जो है मेंस में, वो डेटा इंटरप्रिटेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको एक पाई चार्ट दिया जाएगा। हम्म. पाई चार्ट अपने एक अलग कंसेप्ट है। पाई चार्ट में स्पीड टाइम डिस्टेंस का हम्म. पाई चार्ट रहेगा, अच्छा. उसमें आपको एरिया भी कैलकुलेट करना, मेंसुरेशन भी आ जाएगा। तो हम्म. ऑलरेडी 3 का आते हैं उसमें। हम्म. तो अगर कोई भी एक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है क्या तो तो कुछ. क्वेश्चन तो आपसे बनना नहीं वाला, क्योंकि हम्म. एक सॉल्व करोगे तो दूसरे का आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको एक टॉपिक पता नहीं है। हम्म. तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन देके ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम्म. यार कुछ नहीं बन रहा है, हम्म. ये होता है। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एडवाइस ये रहेगा आप सबको कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, पहले ये करिए कि आप देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है, ओके. क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। हम्म. आप सबसे पहले, हम्म. आपके पास जो एस्पिरेंट्स अभी हैं उनके पास पूरा साल है हम्म. प्रिपरेशन के लिए। हम्म. अभी जनवरी चल रहा है, यस. अगस्त तक 8 महीने हैं हाँ. अपने आप को प्रिपेयर। हम्म. तो आप शुरू के 2-3 महीने सिर्फ जो टॉपिक्स हैं उसको कवर अप करिए, अलग कॉन्सेप्ट. अलग जो आपको कंफर्टेबल लगे। हम्म. ठीक है, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर बुक फॉलो कर रहे हैं या आप कोई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ओके. यूट्यूब चैनल में भी जो है स्टडी लेक्चर्स आ गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या या तो राइट. फॉलो कर सकते हैं। आप बस ये करिए कि एक पर्टिकुलर सोर्स से सारे सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए कि हाँ हम्म. ये सिलेबस है मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है। हम्म. देन आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को कहाँ से पढ़ेंगे ये आपका डिसीजन है। ओके. हो सकता है कि बहुत लोगों को क्या होता है ना कि बहुत लोगों को वर्चुअल स्टडी ज्यादा समझ में आती है rather देन या बुक स्टडी। आई एम वन ऑफ ठीक है, देम. तो या. हाँ, सो
वेल आई एम पर्टिकुलर पर्सन कि मैं पहले बुक्स का कंप्लीट करना प्रेफर करता हूँ, देन मैं ऑनलाइन सोर्सेज को रेफर करता हूँ। तो ओके। ऐसा है कि ना सबका जो है पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग रहता है, कंफर्ट जोन अलग अलग है। हम्म। तो आप उस हिसाब से अपने आप को असेंबल करिए कि हाँ आपके पास सिलेबस है, हम्म। आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ये आप हम्म। डिसाइड करिए। हम्म। देन आप एक एक करके टॉपिक कवर करते जाइए। हाँ, ऐसा मत करिएगा कि आप एक महीना है तो सिर्फ कौन सी पढ़ रहे हैं दिन रात, ऐसा मत करिए। क्योंकि क्या डिवाइड। है ना कि ब्रेन, हाँ ब्रेन क्या है ना कि वो लेथार्जिक हो जाता है एक पर्टिकुलर चीज को अगर बार बार आप फीड करते रहे। So you are talking about the general awareness part. Like even I am curious कि like banking exams के general awareness part आप कैसे prepare करो? जनरल अवेयरनेस बैंकिंग में ऐसा है ना कि बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स दोनों आते हैं। हम्म। उसमें स्टैटिक जीके भी रहता है, अच्छा। नेशनल पार्क्स हो गए, नेशनल प्लान्स हो गए, इम्पोर्टेंट डेज हो गए। तो अच्छा। ऐसी चीजें जो, हाँ जैसे कि वेटलैंड साइट्स हैं, आजकल काफी न्यूज में है वेटलैंड साइट्स, नए हम्म। नए ऐड भी हो रहे हैं। हम्म। तो ये सब चीजें हैं, ये सब ऐसा है ना कि ये सब स्टैटिक जीके है, तो ये सब कभी चेंज नहीं होने वाले हैं विद ओके। टाइम, इसका ओके। आंसर सेम ही रहेगा। तो ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं ओके। स्ट्रैटेजी के। हम करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं, बैंकिंग अफेयर्स पे फोकस करते हैं। तो बैंकिंग में भी स्ट्रैटेजी के जो है, जैसे कि पेमेंट मोड्स हो गए, पेमेंट सेटलमेंट्स रिगार्डिंग, एंड जो छोटे बहुत बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम्म। चेंज नहीं होते हैं, हम वो सब पे फोकस मैंने देखा है कि अक्सर नहीं करते हैं हम, हम्म। क्योंकि ये चलते हैं करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है तो उसको पहले कर लेते हैं। या। करंट अफेयर्स का बहुत ही वॉलेटाइल है ओके। कि आपने मान लीजिए कि आप 6 महीने का पढ़ के जा रहे हैं। हम्म। तो पहले ऐसा होता था ना कि क्या करते थे कि अरे करंट 3 महीना पढ़ के जाते हैं तो मार्क्स आ जाएंगे, जो ओके। क्वेश्चंस लेटेस्ट 3 मंथ से पूछे जाते थे। अब क्या है कि जब एग्जाम जो कंडक्ट करा रहा है उसको भी पता है कि अब कंटेस्टेंट को समझ में आ गया है, हम्म। और हम्म। क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो उसको स्क्रूटनाइज करना है। तो इसीलिए क्या करते हैं ना कि वो उन्होंने वो दायरा 6 महीना कर दिया, 3 महीने से 6 महीना। ओके। अब क्या है ना कि अब हर साल के साथ वो दायरा भी बढ़ते जा रहा है। अब वो क्या है ना कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक साल पुराने करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। ओके। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में हो रहा है, आपको जनवरी के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसा भी हम्म। हो सकता है। हम्म। तो हाँ, तो वो आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप डेली, आपको या तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है, हम्म। या तो आप डेली कोई ना कोई जीके का चैनल फॉलो करते हो यूट्यूब पे, हम्म। या कहीं ना कहीं से आप सोर्सेस से अपना जनरल अवेयरनेस का नोट्स बनाते हो। हम्म। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप कोई एक पर्टिकुलर चैनल फॉलो कर लीजिए डेली हम्म। करंट अफेयर्स के लिए। हम्म। उसका वीडियो देखिए आधे एक घंटे का। उसमें क्या है ना कि करंट अफेयर्स ऐसा है ना कि न्यूज है, अब न्यूज ऐसा है कि पढ़ के बोर हो जाओगे, सुनने में अच्छा लगता है। हम्म। बहुत लोग जिनका रीडिंग का हैबिट है उनको तो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो न्यूज़पेपर पढ़ के वहां से अपना नोट्स बना लेते हैं। मैं हम्म। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको रीडिंग की हैबिट नहीं है, और उनको जो है रीड करना टायरसम लगता है, उनको हम्म। वीडियो से पढ़ना, हम्म। लाइव वन टू वन सेशन ज्यादा पसंद है हम्म। प्रिपरेशन के लिए। उनके हम्म। लिए है कि बेटर आप एक फॉलो एनी पर्टिकुलर करंट अफेयर्स चैनल। हम्म। ओके, हो गया अड्डा 247, जो भी बैंकिंग के प्रिपरेशन कराते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, वो तो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करते ही हैं। अच्छा। कपिल काटपाल सर हैं, उनका अच्छा। भी करंट अफेयर बहुत इंफॉर्मेटिव रहता है, अच्छा। तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं। एंड आप अपना प्रिपरेशन करंट अफेयर्स का ना कम से कम 2 सोर्सेज से करिए। ओके। क्या है ना कि एक पर्टिकुलर जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक छूट जाए जो हम्म। आपको दूसरे सोर्स से पता चले। तो मिनिमम 2 सोर्सेज रखिए। आधे एक घंटे का ही वीडियो रहता है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का, ज्यादा हम्म। लंबे नहीं रहते। तो आप उसको फॉलो करिए। तो आप अपने शेड्यूल को ऐसा प्लान करिए कि आपको 8 घंटे अगर मिल रहे हैं तो उसमें 1.5 से 2 घंटे करंट अफेयर्स को देना है, ओके। एंड 3.5 आवर्स या 3 आवर्स क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग। एंड इंग्लिश, इंग्लिश ऐसा है ना कि इंग्लिश में आपका ग्रामर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके। जो इंग्लिश बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए तो ठीक है,
वो हम्म पैसेज वगैरह रीडिंग वगैरह अपना रीडिंग हैबिट इंप्रूव करेंगे तो वो क्लियर कर लेंगे। हम्म जिनके लिए जिनका इंग्लिश में उतना ज्यादा कमांड नहीं है, हम्म उनके आ, उनके लिए शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी चीज ये है कि आप जो है अपना रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। ओके। डेली कोई ना कोई एक आर्टिकल रीड करिए, चाहे वो आर्टिकल कहीं का भी हो, आपके हम्म प्रिपरेशन रिलेटेड हो, या हम्म आपको कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड पसंद, स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ लिया आपने, हम्म या आपको जैसे ट्रैवलिंग पसंद है तो ट्रैवल मैगजीन से कोई एक आर्टिकल पढ़ लीजिए। तो हम्म ऐसा यहाँ पे डेवलप करना है आप। या बहुत लोगों को नॉवल रीडिंग पसंद है, अगर टाइम बचता है आपके पास तो हम्म नॉवल रीड करिए। बट हम्म मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप रीड कर रहे हैं तो कुछ इंफॉर्मेटिव रीड करिए, ताकि आपको उससे प्रिपरेशन भी हो जाए, हम्म कुछ नॉलेज भी आपको मिल जाए, और वो टाइम भी आपका यूटिलाइज हो जाए। हम्म क्योंकि क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जितना ज्यादा टाइम प्रिपरेशन को देंगे, हम्म उतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी एग्जाम क्रैक करने हम्म की। ये एक बड़ी चीज है जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन के लिए, कि आप एक नोट्स बनाइए। आप हम्म डेली, या तो अगर नोट्स बनाना आपको बहुत हेक्टिक लगता है, तो हम्म आप क्या करिए कि daily आप जो भी आपने जो वीडियो देख के आपने सीखा है, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स आपको, या बैंकिंग अवेयरनेस जो भी नई आपको जानने को मिली है, क्या हम्म करते हैं ना कि चैनल वाले साथ में पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देते हैं या वीडियो के। हम्म आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अच्छा। एंड उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। या हम्म आपको अगर प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो आपको आप फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप सेव कर लीजिए, आप वहां से रीड कर लीजिए। हाँ, वीडियो देखने के बाद उस चीज को रीड करिए। क्या है कि वीडियो में तो आपने उस चीज को सुन लिया, अब वो दिमाग में बैठेगा नहीं। हम्म क्या है कि दिमाग जो है ना, साउंड प्लस आईज दोनों का, ईयर्स एंड आईज दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक हम्म काम नहीं करता है, तब तक हमको चीजें जो है बाई बाई हार्ट नहीं होती है। तो हम्म इसीलिए, हाँ, इसीलिए आपने सुन तो ली करंट अफेयर्स, उसको आप एक बार रीड कर लीजिए, तो क्या है हम्म कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम्म आप ऐसा करके अपना प्रिपरेशन करेंगे प्लानिंग से ना, तो हम्म आप ये देखेंगे एग्जाम के टाइम पे, जब मेंस के टाइम पे आपको कोई बर्डन नहीं हो रहा है हम्म while प्रिपेयरिंग। एंड जीके एक ऐसा चीज है ना कि जीके शुड बी योर स्कोरिंग पॉइंट, इट शुड नॉट बी योर लाइबिलिटी। ओके। बिकॉज और कंटेस्टेंट्स के साथ ये होता है, कैंडिडेट्स के साथ, कि वो जीके को छोड़ के रख देते हैं लास्ट के लिए, हम्म तो वो भी एक सब्जेक्ट बन जाता है पढ़ने के लिए। अब हम्म आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स है, पॉइंट्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इंग्लिश के पैसेज भी आपको सॉल्व करने हैं। तो हम्म अब अगर जीके को भी आपको टाइम देना पड़े तो वो तो आपका 2 से ढाई घंटा किल कर देगा। लाइबिलिटी हो जाएगा, रोज रोज नहीं करे। हाँ, क्योंकि जो चीज आप डेली पढ़ सकते हैं, वो 8 महीने का करंट अफेयर्स आप 3 महीने में तो क्लियर पूरा बाय हार्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि आप पैनिक मोड में आ जाएंगे, आपको कंप्लीट करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो हम्म मॉक के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। हम्म तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप राइट फ्रॉम डे वन, आज से आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो आज से चालू करिए जीके हम्म पढ़ना, हम्म कवर करना चालू करिए। हम्म स्टैटिक जीके ऐसा है ना कि स्टैटिक जीके को आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। हाँ, स्टैटिक Static जीके इन द सेंस कि source कोई बता सकता है, लाइक कहाँ से पढ़ना स्टैटिक, चाहिए? हाँ, स्टैटिक जीके तो ऐसा है कि कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर लीजिए, या अच्छा। अलग अलग आजकल तो ईयर बुक्स आ गए हैं जीके के, उसमें हम्म स्टैटिक जीके दिया रहता है। हम्म ठीक है। और क्या होता है ना कि एक मंथली मैगजीन आता है, ऑलिव बोर्ड का, अड्डा का भी आता है, अच्छा। करियर पावर का। एक पर्टिकुलर बैच जो प्रिपरेशन कराते हैं कॉम्पिटेटिव हम्म एग्जाम्स की, उनका एक ना मंथली कैप्सूल या मंथली जीके का वो बनाते हैं जनरल अवेयरनेस का, उसमें भी स्ट्रैटेजी जीके दिया रहता अच्छा। है। या आप उसको खुद भी, हाँ, आप उसको खुद भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, तो आपको बस गूगल पे सर्च करना है नेशनल पार्क्स इन इंडिया, तो सारे नेशनल पार्क्स एंड उसके जो स्टेट है कहाँ पे क्या सिचुएटेड है एंड किस चीज के लिए फेमस, हम्म वो एक आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो मिनिस्टर्स हैं, ओके, जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, ये हो गया स्टैटिक जीके में। एंड जो सेंट्रल कैबिनेट है, उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स है, क्या पोर्टफोलियो है उनका। हम्म हम्म एंड अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर अगर न्यूज में है, हम्म मान लीजिए क्या होता है ना
कि ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है स्कोर करने का। अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम, मेंस एग्जाम आने वाला है, एंड लास्ट 1 to 2 मंथ्स में अगर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर न्यूज में है या कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री न्यूज में है, तो आप उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के बारे में और मिनिस्टर के बारे में आप पूरा डिटेल ले लीजिए कि वो मिनिस्टर है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है, वो लोकसभा का मेंबर है कि राज्यसभा का मेंबर है। ओके, सो वो कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है अभी। ओके, एंड जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है ना कि एग्जाम में आपको ऊपर ऊपर की चीजें नहीं पूछी जाएंगी, आपको एकदम इन डेप्थ पूछा जाएगा। ऐसी चीजें जो कभी आपने सोचा नहीं है कि आप ये एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसी चीजें आपको पूछी जाएंगी। हाँ, जैसे मैं जब एग्जाम दिया था ना, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस साल जो है बैलन डी'ओर या कोई एक पर्टिकुलर अवार्ड जीता था फुटबॉल में। तो क्वेश्चन ये था कि देखते साथ तो सब लग गए कि अरे ये तो अभी अभी तो जीता है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि उसने अपना पहला कौन से ईयर में जीता था बैलन डी'ओर। अच्छा। अब हमने तो पहला तो पढ़ के नहीं गए, हम तो लेटेस्ट पढ़ के गए हैं कि करंट अफेयर्स हमने लेटेस्ट की तैयारी की है। अब चूंकि वो पर्टिकुलर प्लेयर न्यूज में था, तो अच्छा। उसका करियर क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम। हम्म। तो स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, ये सब करने का टाइम आपके पास तभी रहेगा जब आप अपने जनरल अवेयरनेस को डे टू डे बेसिस पे पढ़ते जाएं। हम्म। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे तो आप करंट अफेयर्स ही कवर कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा कब करेंगे। तो हम्म। बेसिकली it's about time management, how well you can manage your time, how well you can prepare yourself, keep your composure, it's all about that। जो कैंडिडेट उसको सक्सेसफुली कर लेता है, उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। एक बहुत ही थिन लाइन है सक्सेस और फेलियर के बीच में। ठीक है, मैं, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं मेंस एग्जाम क्लियर हुआ था, इंटरव्यू दे के आया था। इंटरव्यू भी जो मेरा मिस हुआ वो 1.5 से 2 नंबर के लिए मिस हुआ है फाइनल कट ऑफ। बट 1.5 से 2 नंबर के लिए जो मिस हुआ ना, तो किसी कोई पूछने नहीं आया मेरे से कि कितने मार्क्स के लिए मिस हुआ। मेरे से बस यही पूछा गया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब वो 1.5 मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ कि वो 50 मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ, ये मैटर नहीं करता है। आपका क्लियर नहीं हुआ ये मैटर करेगा, क्योंकि क्योंकि सोसाइटी और लोग आपको यही पूछेंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट क्लियर कर रहा है उसको ये नहीं पूछा जाता कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने कितने मार्क्स से क्लियर किए हैं। बस लोग यही देखते हैं कि इसने क्लियर कर लिया, ये ज्वाइन करने वाला है या ज्वाइन करने वाला है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ये हार्ट ब्रेक से बचने के लिए आप स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। मैं गुजर चुका हूं तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं ताकि आपको ना गुजरना पड़े। क्योंकि क्या है ना कि 1 साल की प्रिपरेशन जो है आपने की है ना, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो वो 1 साल तो आपका वेस्ट हो गया। वो एफर्ट्स, हाँ, एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर वो काम आएंगे आपने जो प्रिपरेशन की है। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो सर्विस टेन्योर है आपका बैंकिंग इंडस्ट्री में, अगर आप उस साल ही क्लियर कर लेते तो 1 साल ज्यादा सर्विस कर पाते, बेनिफिट ज्यादा मिलता आपको, हम्म। सर्विस बेनिफिट ज्यादा मिलता। वो उससे आप वंचित रह जाएंगे। मेरा हम्म। कहने का मतलब ये है। ठीक है, हम्म। इस चीज का लोड मत लीजिए कि आप इतना लोड ले रहे हैं क्लियर करने का कि आप एग्जाम में ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। या प्रेशर बिल्ड ऐसा हो भी मत जाता है। करिए। हम्म। हाँ, प्रेशर मत लीजिए। मैं तो एक बार बोलूंगा कि मैं तो जब एग्जाम में नहीं आता था ना, तो मैं ये कभी सोच के नहीं आता था कि मैं एग्जाम क्लियर करूँ। मैं ऐसा जाता था, ठीक है प्रिपरेशन किया हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं ये कंपोजर रख के जाता था। तो हम्म। इससे इससे फायदा क्या होता था ना कि मेरे को कभी एग्जाम की टेंशन ही नहीं होती थी क्लियर करने की। तो पेपर टफ आए चाहे इजी आए, मेरे को अगर क्वेश्चन बन रहा है तो मैं बनाता था, नहीं बन रहा तो ठीक है, मेरे को लगता था ठीक है यार मेरे से नहीं बन रहा तो किसी और से भी नहीं बन रहा हो। वो कैजुअल एक जो कंपोजर है ना वो आ जाता है। कैजुअल एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैजुअल कंपोजर की बात कर रहा या आई एम अंडरस्टैंडिंग या। हूँ। हाँ, हाँ, एग्जाम में आपको, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जो प्रेशर ज्यादा अच्छे से हैंडल करता है ना, वही कैंडिडेट एग्जाम क्लियर करता है। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम ऐसा हो गया या यूपीएससी ऐसा एग्जाम है, या आप कोई भी आईआईटी जेई हो गया, नीट पीजी हो गया, ये सब एग्जाम ऐसा है ना कि इसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, सेम टॉपिक्स प्रिपेयर करके जा रहे हैं। बट वहां पे वही बंदा या बंदी सक्सेस पा रहे हैं जिन्होंने अपना कंपोजर एग्जाम के उस 3 घंटे में रखा है। यस यस।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने साल भर तैयारी की है बट आप इतना ज्यादा अपने आप को एग्जाम प्रेशर से ओवरबर्डन कर दे रहे हैं कि हम्म आप वो फाइनल 3 आवर्स में ही जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। हम्म हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे मॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि क्या है ना कि मॉक्स जितना आप ज्यादा देंगे ना तो आपको जो है आदत रहेगी क्वेश्चन से जूझने की आदत रहेगी। हम्म बनना नहीं बनना वो तो बात की बात है, क्योंकि हम्म हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन ना बने आपसे, हम्म बट आप उससे डिमोरलाइज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने मॉक्स में आपको आदत है कि 3 से 3.5 घंटा आप बैठते हैं, डेली बैठते हैं, एंड हम्म मॉक्स में आप दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं तो भी आप कोशिश कर रहे हैं। यस हाँ, तो वो अंदर से एक आपके अंदर वो मोटिवेशन रहती है कि ठीक है यार, नहीं बन रहा है, मैं आगे देख लेता हूँ कि और कौन सा क्वेश्चन है, मैं हम्म उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश। हम्म तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना प्रिपरेशन का ऐसा प्लान करिए कि आपके पास मॉक्स देने का भी सफिशियंट टाइम रहे। हम्म 8 से 9 महीने आपके पास प्रिपरेशन के लिए है। अपना सारा प्रिपरेशन आप 5 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। जो पढ़ने वाला पार्ट है, टॉपिक्स को पढ़ना है, अलग अलग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, वहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप कॉन्फिडेंट हो गए देन हम्म आप मॉक देना चालू करें। हम्म लास्ट के 2 से ढाई महीना आप अच्छे से मॉक दीजिए, अलग अलग सोर्सेज से मॉक दीजिए, ठीक है। तो मतलब एकदम मल्टीपल सोर्सेज पे भी मत जाइए, कम से कम 2 सोर्स रखिए। क्या है ना कि एक सोर्स में जो है आप हैबिचुएट ना हो जाए, इसीलिए 2 सोर्स की बात कर रहा हूँ। आप दो अलग अलग सोर्स से दीजिए, एक कोई एक फ्री सोर्स फॉलो कर लीजिए। हॉलीवुड हो गया, अड्डा हो गया, कैरियर पावर है, बहुत सारे हैं आजकल तो। गाइडली भी आ गया है, बहुत सारे नए नए चैनल्स आ गए हैं, और वो जो है फ्री मॉक टेस्ट कराते हैं, लाइव मॉक्स भी चलते हैं उनके। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से प्रिपेयर करिए। और एक सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। मैंने स्मार्ट कीड़ा का सब्सक्रिप्शन लिया था क्योंकि मेरे को जो है उसका लेवल सबसे ज्यादा अच्छा लगता था बाकी मॉक से। तो हो सकता है कि आपको दूसरा मॉक ज्यादा पसंद आए, हम्म दूसरे टेस्ट सीरीज। वो आपके ऊपर है। आप क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज के फ्री मॉक रहते हैं, तो आप दे के देखिए, क्वेश्चंस देख के देखिए कि हाँ कैसा है लेवल। अगर आपको लगता है कि हाँ ये लेवल मेरे को अभी सूट कर रहा है तो उस लेवल से शुरुआत करिए। हाँ, बट अपने आप को आप बांध मत लीजिए उस पर्टिकुलर लेवल में। हमेशा ट्राई करिए कि यू शुड गो फॉर अ प्लस, ठीक है। हम्म अपने लेवल को आप इंक्रीज करने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल बैंकिंग एग्जाम जो है ना, कैट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड। हम्म तो देखा भी होगा बहुत लोगों ने कि जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे थे वो जब बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इजीली क्लियर कर ले रहे हैं, हम्म क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम्म तो हाँ, तो यही होता है। तो अ, वही होता है ना कि हम जब बोलते हैं कि एम फॉर द मून सो यू विल एंड अप विद स्टार्स, वही हम्म वाली बात है। हम्म सबसे हाईएस्ट पीक के लिए एम करिए, ठीक हम्म है, सेकंड हाईएस्ट तो मिल ही जाएगा। हम्म अगर हाईएस्ट नहीं मिला तो वही चीज है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों के अंदर मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम आईबीपीएस या एसबीआई का जैसे क्लरिकल का एग्जाम है एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर, दो अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो हम्म हमें दोनों का प्रिपरेशन क्या अलग अलग करना चाहिए? तो देखिए, दोनों का प्रिपरेशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप पीओ का प्रिपरेशन अच्छे से अगर करेंगे ना तो क्लरिकल भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लरिकल का जो लेवल है वो पीओ जितना ही रहेगा, उससे टफ नहीं आएगा। हम्म तो आप पीओ का प्रिपरेशन इतने अच्छे से करिए कि आपको क्लरिकल पे ध्यान ना देना पड़े। हम्म क्लरिकल का एग्जाम आपका ऐसा रहना चाहिए कि वो आपका एक यूएसबी रहना चाहिए, क्या ये तो मेरे से क्लियर होना ही है। हम्म मैं पीओ के लिए एम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्लरिकल तो मेरे से क्लियर होना ही है। तो आप हम्म प्रिपरेशन अपना वैसा रहता है, ताकि आपको क्लरिकल के लिए बॉदर ना करना पड़े, क्योंकि कोर्स सेम है, ठीक है। उसमें ऐसा है कि क्लरिकल में डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है। अच्छा हाँ, तो अभी तक तो नहीं आता है, बट आगे हो सकता है आ जाए, बट इट्स नॉट अ बिग डील। हम्म डिस्क्रिप्टिव आप क्लियर कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव क्लियर करना बड़ी बात नहीं है। मेन ये है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ ही अगर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो डिस्क्रिप्टिव का कोई वैल्यू नहीं है, आप कितना भी अच्छा लिखें। तो यही चीज है कि पहले आप प्रिपरेशन पीओ के लिए अच्छे से करिए, बिना कोई माइंड में डबल थॉट्स लाए, एंड क्लरिकल का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली हो जाएगा। एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज के, बैंकिंग के एग्जाम्स है, दोनों का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम है।
सिलेबस भी सेम है, तो अलग अलग एग्जाम्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन पैटर्न सेम रहेगा। हाँ, आपको स्ट्रैटेजी अपना डिवाइस करना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल क्लैश हो सकता है। हम्म आपको एग्जाम के ड्यूरेशन जो है वो क्लैश हो सकता है कि आप, आपका बैंकिंग का एग्जाम है, कल आपका इंश्योरेंस का एग्जाम है। हम्म तो आपको अपना प्रिपरेशन वैसे रखना पड़ेगा कि आप ज्यादा अपना टाइम एक अपना एडजस्टमेंट करने में ना दें। आप अपना प्रिपरेशन वैसा रखिए, अपना प्रिपरेशन वैसा चलाइए, कोई हम्म दिक्कत नहीं है। वो जितना हो सके उतना सवाल लगाइए डेली। हम्म हम्म आप जब एक बार आप सारे कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, हम्म तो जब आप, ऐसा नहीं कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है 15 दिन बाद तो आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी आपने छोड़ दी है। हम्म ऐसा मत करिए। हाँ, आपको टाइम कम मिलेगा, मेंस का मौका आप नहीं दे पाएंगे, सिर्फ प्रीलिम्स के मौके पर फोकस करिए। बट हमेशा ये ट्राई करिए कि आप प्रीलिम्स का मॉक दे दीजिए, 1 घंटे का ही तो मॉक है, 1 घंटा मॉक दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एनालिसिस करने के बाद आप 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का कर लीजिए, 5 क्वेश्चन कोई पजल बना लीजिए रीजनिंग का। इससे क्या होगा ना, आपका ब्रेन जो है ना वो लॉक नहीं होगा जब आप मेंस की तैयारी चालू करेंगे। आपका हम्म ब्रेन जो है चर्निंग करता रहेगा। तो आप जब मेंस का तैयारी जब चालू करेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक मेंटल ब्लॉकेड है जो मेरे को क्लियर करना है। आपको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका वो फ्लो मेंटेन रहेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है मॉक के रिगार्डिंग, ये है कि जब आप मॉक दे रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, मॉक दे के स्कोर देखते हैं एंड उसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है यार, ये वाला क्वेश्चन में आप 100 में से 60 बना पाए, नेक्स्ट वाले में ट्राई करते हैं ज्यादा बनाने बट वो नेक्स्ट वाले में ट्राई ज्यादा बनाने का वो तभी आप कर पाएंगे जब आप एक उस पर्टिकुलर मॉक को अच्छे से एनालाइज करेंगे आई एग्री। कि 60 क्वेश्चन तो आपसे बन गए, जो 40 नहीं बने, क्यों नहीं बने, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, वो आप तभी पता कर पाएंगे जब आप उस मॉक को अच्छे से एनालाइज करेंगे। 1 घंटा प्रीलिम्स के दौरान आप 1 घंटा अपना मॉक दीजिए एंड उसके बाद उस मॉक को आप एनालाइज करिए। जितना टाइम आपको लगे आप लीजिए, क्योंकि अगर एनालिसिस अच्छे से नहीं करेंगे तो आप अगले मॉक में बेटर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो कंसेप्ट आपसे छूट गए हैं, उस हम्म कंसेप्ट वो कंसेप्ट छूटे हैं मतलब कि वो आपका वीक पॉइंट है, सीधी सी बात है। यस अगर यस। आपसे नहीं बना है मतलब वो आपका वीक पॉइंट है, क्योंकि आपका दिमाग क्लिक नहीं किया। हाँ जी। आपको उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। हम्म आप उस टॉपिक को मार्क कर लीजिए अपने सिलेबस में कि हाँ, हम्म ये जो टॉपिक है ये मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना। आप क्या करिए, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करिए। हम्म हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि आप हजारों क्वेश्चन सॉल्व करिए, 5 से 6 क्वेश्चन। वो ऐसा है कि वो आपके कंसेप्ट को ब्रश अप करने के लिए, हम्म कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए उस टॉपिक के, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपको वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एंड देन आप नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करिए। तो नेक्स्ट मॉक जब आप अटेम्प्ट करेंगे, आप ये देखेंगे कि आप इंप्रूव कर रहे हैं। 60 से आपका जो स्कोर है वो 65 जा रहा है या 70 जा रहा है। जो टॉपिक आपका छूट गया था पिछले टेस्ट में, वो इस पर्टिकुलर मॉक में आप सॉल्व कर लिए। ये देखेंगे इवेंचुअली एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है, क्योंकि छोटे छोटा आपको एफर्ट देना पड़ेगा। तो हम्म धीरे धीरे आप इंप्रूव करते जाएंगे। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने एफर्ट्स में, उतने जल्दी आपको रिजल्ट्स हम्म मिलेंगे। एंड होता है कि प्रिपरेशन के दौरान जो है हमारा एक ब्रेक पीरियड आता है। हो सकता है घर में किसी की शादी आ गई या कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो गया, या आपको आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं आप वेकेशन के लिए, तो बिल्कुल जाइए। एंड उस दौरान तो आप क्वांट्स या रीजनिंग नहीं पढ़ पाएंगे, बट एक चीज आप पढ़ सकते हैं, वो है जनरल अवेयरनेस। और इंग्लिश का कोई भी एक पर्टिकुलर आप आर्टिकल रीड कर सकते हैं ताकि आपको रीडिंग हैबिट ना छूटे। क्योंकि ये टायरसम नहीं, आपको बस हार्डली 10 मिनट देना है, 10 से 15 मिनट। वो दिन के आप दे सकते हैं, भले ही आपको दिन भर टाइम ना मिले, जब रात को सोने जाते हैं तब दे दीजिए। सोने के पहले, सोने के पहले तो हम सब मोबाइल ब्राउजिंग करते हैं, आधे से 1 घंटा अपना टाइम देते हैं सोने के पहले। तो वेब सीरीज ना देख के या कोई मूवी ना देख के आप इस पे अपना टाइम दे दीजिए। क्या है कि आप अपने टाइम को जितना अच्छे से यूटिलाइज करेंगे ना, एंड रिजल्ट उतना अच्छा रहेगा। एक बार आप क्लियर कर लिए एग्जाम ना, उसके बाद आप वेब सीरीज देखो या आप आउटिंग पे जाओ, कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि आपको सक्सेस मिल चुका है। ठीक है, एंड जो एक सोसाइटल प्रेशर रहता है आपके ऊपर वो हट जाता है। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जब भी ब्रेक ले रहे हैं, आप प्रिपरेशन से ब्रेक लीजिए, बट
आपको कंटिन्यू कंप्लीटली कट आउट मत करिए, क्योंकि क्या हाँ। है कि ब्रेन एक बार आपका आइडल पोजीशन पे चले गया तो उसको वापस रिजुविनेट करने में ना टाइम जाएगा। हम्म। आपका वेकेशन 5 दिन का है, बट आपको वापस से प्रिपरेशन मोड में आने में और 5 दिन चले जाएंगे, तो आपका जो 10 दिन खराब हो गया। आई एग्री। और एक एक दिन तो क्रूशियल होता है। इसीलिए, हम्म। हाँ, तो इसीलिए आप अपना प्रिपरेशन वैसे ही रखिए। आप अपने आप को प्लान कर लीजिए, जैसे आपको पता है आपको वेकेशन जाना है, तो आपको पहले से पता है कि मैं 1 तारीख को वेकेशन पे जा रहा हूँ। तो आप अपना प्रिपरेशन ऐसा करिए कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि ठीक है, मैं वेकेशन के दौरान सिर्फ जीए कवर करूंगा। तो आप जीए पे उस दौरान ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप क्वांट्स एंड रीजनिंग पे ध्यान दीजिए कि हाँ, ये करने का मेरे को तब टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ। तो मैं इसको प्रिपेयर कर लिया, तो क्या है कि आपका जो टाइम गैप है रीजनिंग एंड क्वांट्स को लेके, वो कवर अप हो जाएगा वेकेशन के दौरान। तो ये स्मार्ट प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। आप अपने स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाइए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसके हिसाब से काम करिए, वीक पॉइंट पे ज्यादा फोकस करिए, एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे आप उसको कंटिन्यूसली करते रहिए पैरेलली, बट एकदम से ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ब्रशअप आपको उसको नहीं करना है, पॉलिश आपको अपने वीक पॉइंट्स को करना हम्म। सो थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन थे, बट द बेस्ट है। पार्ट इन दिस कॉन्वर्सेशन वाज यू ब्यूटिफुली एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। जो जो पॉसिबल Okay. क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, आपने पूरे हाँ, कॉन्वर्सेशन में एक एक चीज कवर कर दिया कि हाउ शुड बी द स्ट्रैटेजी, लाइक प्रीलिम्स कैसा होना चाहिए, मेंस कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या फिर द हाँ, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई फाइंड कि आप लाइक पीओ की प्रिपरेशन करो तो क्लर्क तो निकलेगा ही निकलेगा। एंड हाउ यू ब्यूटिफुली हाँ, सेट टू एस्पिरेंट्स कि जीके का प्रिपरेशन जो है लास्ट मोमेंट में आप रखोगे तो इट वुड बी अ हाँ, लाइबिलिटी टू बी ऑनेस्ट। आप डेली डेली अगर हाँ, उसको करते रहेंगे तो इट विल बी योर प्लस पॉइंट इंस्टेड ऑफ योर माइनस पॉइंट। सो हाँ, मेक जनरल अवेयरनेस योर स्ट्रेंथ, वही बोल रहा हूँ मैं। yeah, so हाँ, like it was very interesting talking to you. Even I got to understand and know like कैसा strategies होना चाहिए। And I think इस साल तो बहुत सारे एग्जाम्स है ऑलरेडी इंश्योरेंस के, हाँ, बैंक्स के, तो आई थिंक ये वीडियो जो है पर्टिकुलरली सब एस्पिरेंट्स के काम आने वाले हैं। And thank you so much. It was very nice having you in this platform. And thank you so much. थैंक्स लॉट फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम।